So in this class we are going to discuss about carboxylic acid. Carboxylic acids are the organic compounds that contain carboxylic group. So carboxylic group is a combination of the word carbonyl and hydroxyl. You can look over here. So carbonyl carboxylic group, as the name goes here, carboxylic group, it is a combination of the words carbonyl. So you know what carbonyl is. It is a combination of the word carbonyl and carboxyl. So carbonyl, you know that C double bond O is known as carbonyl, and OH group is known as carboxylic, is known as hydroxyl group. So you can see this structure over here. It contains both. This is the carbonyl group and OH is the hydroxyl group. So when we have a combination of both, we call it as carboxyl group. So the higher members of aliphatic carboxylic acids are also known as fatty acids. You have heard about this term fatty acid. Even in class 10th you have heard that soaps are long chain fatty acids. So what is fatty acid? The higher members of aliphatic carboxylic acid that contains more higher member means that contain more number of carbon atoms, like 18 carbon atoms and more. So such type of carboxylic acid which contain more than 18 carbon atoms are known as fatty acids, and fatty acids are also used for preparation of soaps that you have studied in class 10th itself. So we come to the structure of carboxylic acid now. So this is the structure of carboxylic acid, and you know that it is having a double bonded, look over, it is having a double bonded oxygen and also OH. Now this OH, the oxygen of OH group has got two lone pairs of electron which can undergo resonance, and because of the resonance, this the double bond has got one sigma bond and another pi bond. So the pi bond delocalization can take place. So when delocalization of pi bond take place, this is how the pi electron will be delocalized to the oxygen, because of which you will have a negative charge. You will have a negative charge on, look here, on the oxygen you are having negative charge. So another thing is that the the lone pair electrons of oxygen could also be delocalized. So when that delocalization occurs, it gets delocalized over here, as a result of which a negative charge will develop on the oxygen, and another, you are having also a positive charge on the oxygen of OH, and a negative charge over here on the oxygen that is bonded to carbon. So because of this resonance which is taking place, again you can see that on the carbon a positive charge develops, like you have studied in aldehyde or in case of ketone, but this electrophilicity of this carbon is very less. Why? Because of the presence of this OH group. This OH group, the delocalization of lone pair makes it less reactive. So carboxylic groups or carboxylic acids are less reactive than aldehydes. I repeat once again, why is carboxylic acid less reactive than aldehyde? It is because of the presence of the OH group which is bonded to carbon, and due to delocalization of this lone pair of electrons, which is taking place over here, this positive charge on the carbon is reduced, and because of this reduction in positive charge, carboxylic acids are less reactive than aldehydes. And now the bond angle, if you consider over here, the bond angle between carbon and this double bonded oxygen, carbon and OH is 120 degree. Like you already had in case of aldehyde also, it was a planar structure with 100, and this is the bond angle over there, 120 degree. Now we are going to discuss about methods of preparation. So first of all, I will take up your doubts if you have any doubts.
So I'm going to start with methods of preparation of carboxylic acids. So for the first method of preparation you can see is from primary alcohols and aldehydes. So you have studied in the chapter of alcohols and also in the part of aldehydes that by oxidation primary alcohols can be converted to aldehyde or to carboxylic acid. It depends upon the use of the oxidizing agent. अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि KMnO4 अगर हम यूज करें। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें जैसे कि सिर्फ CrO3 या तो फिर हम PCC अगर यूज करें तो रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड पे आके ही रुक जाएगा। सो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें कन्वर्ट करना है प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यूज करना पड़ेगा। तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए? ये KMnO4। KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द 3 मीडियम्स। यू कैन लुक ओवर हियर, इधर इट्स न्यूट्रल मीडियम और अल्कलाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम। इन तीनों मीडियम में KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एंड इट कैन कन्वर्ट अ प्राइमरी अल्कोहल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। Besides KMnO4 we can also use a potassium dichromate in acidic medium। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। सो यू हैव टू राइट एन एसिड विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट whenever you are using this as an oxidizing agent। और जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट क्या है? जोन्स रिएजेंट इज CrO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है जोन्स रिएजेंट। एंड प्राइमरी अल्कोहल बाय यूज ऑफ एनी ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द जनरल फॉर्म which I have written over here. So we have got a, see here over we are getting a reaction that I have written. The only thing you have to keep in mind over here that the number of carbon atoms on both the sides must be same. If you are having 2 carbon atom on the reactant side, see R मैंने एक जनरल फॉर्म लिख दिया है। अगर आपको रिएक्टेंट साइड में 2 कार्बन एटम है तो प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन एटम रहेगा। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक व्हेन दे राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। वो कार्बन एटम को या तो इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं, तो वो फिर एक मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे जब भी आप प्रोडक्ट लिखो तो ये ध्यान रखो कि हमेशा उतने ही कार्बन एटम होंगे जितना कि रिएक्टेंट साइड में है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन। यू कैन सी ये जनरल फॉर्म है रिएक्शन का जो कि हम यूज कर रहे हैं एक कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस रिएक्शन यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ अल्कोहल्स। और उसके बाद अब हमारे देखिए अब एल्डिहाइड को कन्वर्ट करने के लिए क्या है? एल्डिहाइड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके भी कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? टोलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग्स रिएजेंट। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है और साथ में आपको सिल्वर मिरर देता है। सो टोलेंस रिएजेंट इज ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन। एक कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा लेकिन एल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन दे देगा। इसके अलावा फेलिंग्स रिएजेंट, यू हैव टोल्ड यू दैट फेलिंग्स रिएजेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, फेलिंग ए और फेलिंग बी, दोनों को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करके बनाया जाता है। सो फेलिंग्स रिएजेंट इज ऑल्सो अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड an aldehyde reacts with Fehling reagent to gives reddish precipitate of cuprous oxide। cuprous oxide बनता है इस रिएक्शन में और उसका रेडिश कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन सैंपल है वो एल्डिहाइड है और वो कीटोन नहीं है। So by using mild oxidizing agents like this, an aldehyde could be converted to carboxylic acid. This is another method for preparation of carboxylic acid, and you can see that you have also studied about it by using a Grignard reagent. So what is a Grignard reagent? RMgX is known as Grignard reagent. ये देखिए इस तरह के जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएजेंट जो होता है इस तरह का रिएजेंट, उसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट।
सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, यहाँ पे X जो है वो कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, हम जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन को ही यूज करते हैं। व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉलिड स्टेट, सॉरी आई हैव रिटन इट ओवर ड्राई एसिड, ये एक रॉन्ग है, इसको सॉरी ड्राई आइस इसको बोलता है, मेंशन्ड ओवर हियर रॉन्ग, सो काइंडली मेक अ करेक्शन हियर। RMgX reacts with dry ice. What is dry ice? It solid carbon dioxide is known as dry ice. So when it reacts with dry ice, you can see you get this intermediate. ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसको आपने भी लास्ट पार्ट में पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। एंड व्हेन अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप करोगे, देन व्हाट वी गेट इज दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। सो सॉल्वेंट यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करते हैं हम। और ये रिएक्शन कैसे होता है आप देखो, ये रिएक्शन जो है एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। So how does the reaction take place? You know that this bond is, you can see that the bond between alkyl group कार्बन और Mg के बीच का कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो नेगेटिव पार्ट ऑफ ग्रिगनाइट रिएजेंट है, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। और साथ के साथ यहाँ पे जो ये pi electron cloud है, that will be delocalized on the oxygen. So this is how the attack will take place. The negative part will attack the carbon which will have positive charge on it, और साथ के साथ ये delocalization is taking place of the pi electron, and because of which this intermediate is formed. ये देखिए यहाँ पे intermediate form हो गया है। So intermediate यहाँ पे form हो गया है, और ये intermediate जब है आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो व्हाट यू गेट इज द प्रोडक्ट। सी दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया है। नाउ इसका एक और यूज है, इस रिएक्शन को सिर्फ हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में, प्रिपरेशन में यूज नहीं करते, इसके अलावा दिस कैन बी यूज इन कन्वर्जन रिएक्शन। ये इस रिएक्शन को कन्वर्जन में कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज करना हो चेन में। आप ये देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, सी द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है आप देखो, इट इज हैविंग वन मोर कार्बन एटम देन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में RMgX, अगर ये एल्काइल ग्रुप में अगर एक कार्बन एटम है तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा उसमें 2 कार्बन एटम हो जाएंगे, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन भी इसमें इंक्लूड होगा। सो यू हैव टू राइट डाउन द प्रोडक्ट हियर विथ वन मोर कार्बन एटम, यहाँ पे एक और कार्बन एटम जो है आप करोगे। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन दी conversion reactions where you have to ascend the chain, यानी कि आपको you have to increase the number of carbon atoms, so the product has got one more carbon atom than the reactant over here in this case. So this is more useful. Another reaction that we are going to study over is from acyl halides or anhydride. acyl halide और anhydride से हम ये reaction को कैसे करते हैं देखिए। So what is an acyl halide? RCOCl is known as an acyl halide. ये वाला पार्ट देखो, RCOCl, ये वाला पार्ट जो है इसी को हम एसिड क्लोराइड बोलेंगे, एसाइल हैलाइड बोलेंगे। व्हेन इट रिएक्ट्स दे आर 2 पार्ट नाउ। अगर हमने सिर्फ इसको वाटर से रिएक्ट कराया, अगर ये सिर्फ वाटर से हम रिएक्ट कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, लेकिन अगर हम इसको वाटर मिक्स विद बेस यानी अल्कलाइन मीडियम में अगर आप इसको रिएक्शन कराओगे तो ये कार्बोक्सिलेट आयन देगा, which on acidic hydrolysis will form carboxylic acid. So it follows 2 paths, whether you are reacting with directly with water or you are reacting it in presence of a base. So if it is the reaction is carried out in the presence of base, this will give you carboxylate ion, but with water directly it will form carboxylic acid, and the number of carbon atoms in both the cases will remain the same as the reactant. So look over here, this is the acid and now we have got this reaction. यहाँ पे इस reaction में हम एक acid anhydrides की hydrolysis करेंगे, then we get a mixture of 2 product. अब ये reaction कहाँ से cleavage होगा, ये देखिए, अगर ये reaction अगर ये वाला bond अगर cleave हो रहा है, then एक ये part जो है
ये वाला पार्ट एक बनाएगा, एक ये वाला पार्ट आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और दूसरा वाला जो है वो 2 नंबर के कार्बन एटम, एक ये आपका प्रोडक्ट बन गया और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से निकल के आया. सो सी यू आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड when an acid anhydride reacts with water. So this is what the product is formed. Kindly ignore the sequence that we have discussed. So this is another method for preparation of carboxylic acid, that is from alkyl benzene. So alkyl benzene means when an alkyl group is attached to the benzene ring, उसको बोलते हैं alkyl benzene. तो इसमें कुछ certain points है जो आपको ध्यान में देना है. इसको since alkyl benzene है, then it is used for preparation of aromatic carboxylic acids. इसके लिए प्रिपरेशन में यूज होगा. एलिफेटिक बनाने में नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो एक एल्काइल बेंजीन है, तो एरोमेटिक रिंग जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें. सो नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि इट इज यूज्ड फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. सेकेंड वाला पार्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है. देखिए सेकेंड पार्ट बोल रहा है दैट एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज. हम कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप ले, 2 कार्बन का ले, 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप ले, कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर हम ले रहे हैं तो वो पूरा का पूरा चेन जो है वो COH ग्रुप में रिड्यूस हो जा रहा है. तो ये रिएक्शन भी कन्वर्शन में बहुत यूज होगा. सपोज आपको एक एल्काइल बेंजीन उन्होंने दे रखा है जिसमें एल्काइल ग्रुप में 4 कार्बन एटम है या उससे ज्यादा है, लेकिन आपको बनाना बेंजोइक एसिड है, तो सीधे आप उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए और वो पूरा 4 कार्बन एटम की भी अल्काइल ग्रुप अगर है वो तो सीधे एक ही कार्बन में रिड्यूस हो जाएगी. सो सी ओवर हियर, सो एंटायर कार्बन साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू COOH. नाउ हाउ कैन वी डू इट? वी डू इट बाय यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? क्रोमिक एसिड. क्रोमिक एसिड कैसे बनाते हैं? आई टोल्ड यू इन द सेकेंड चैप्टर. क्रोमिक एसिड इज व्हेन अ डाइक्रोमेट इज प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सोडियम डाइक्रोमेट हम ले रहे हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं, तो कोई भी अगर डाइक्रोमेट को हम कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड में उसको रिएक्ट करते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन हमको मिलता है उसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 की तरह. और यहाँ पे KMnO4 जो हम ले रहे हैं, यू कैन सी दैट वी आर टेकिंग द KMnO4 इन एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम. हम या तो एसिडिक मीडियम में लेंगे या तो हम एल्कलाइन मीडियम. यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 हमें नहीं लेना है. और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं यूज के कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा सीधे, लेकिन टर्शरी जो है वो अनइफेक्टेड रहता है. आप टर्शरी को रिएक्शन नहीं करा सकते हैं. तो अब इफ यू हैव गॉट अ टर्शरी अल्काइल ग्रुप ओवर हियर, टर्शरी अल्काइल ग्रुप अगर आपने लिया है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा. सो टर्शरी विल रिमेन, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्शरी अल्काइल ग्रुप विल रिमेन अनइफेक्टेड बट द सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्काइल ग्रुप आर converted to carboxylic acid. So this part is, now we will see the reaction. अब हम रिएक्शन देख रहे हैं इस केस में. देखिए ये 2 एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी टेकन इट फ्रॉम द बुक. यू हैव गॉट अ मिथाइल बेंजीन. इन दिस केस व्हेन वी आर यूजिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर एज एल्कलाइन KMnO4. अब यहाँ पे देखिए एल्कलाइन KMnO4 में हमने KOH यूज किया है, यानी एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट है. और हीट जब करेंगे तो सबसे पहले एक पोटेशियम सॉल्ट में यह कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये देखिए हमें जो है बेंजोइक एसिड यहाँ पे मिल गया. दिस इज द बेंजोइक एसिड दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर. सो नाउ इन दिस केस यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास प्रोपाइल बेंजीन है. देयर आर 3 कार्बन एटम्स ओवर हियर. प्रोपाइल बेंजीन. सिमिलरली इफ वी यूज द रिएजेंट, 3 कार्बन एटम है, फिर भी वो देखो ऑक्सीडाइज होके पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है, और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड. और यहाँ पे इफ वी रिएक्ट इट विथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे वी विल आल्सो गेट इट कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड. तो अल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यहाँ पे देखिए अल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप जो है वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जा रहा है. सो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर. और this reaction is very useful also in conversion, as I told you in case of Grignard reagent. Now the next method is by use of nitriles and amide. Nitrile यानी CN ग्रुप को nitrile बोलते हैं और amide CONH2 ग्रुप को amide बोलते हैं.
तो यहाँ पे देखिए ये जनरल पाथवे है जो वो फॉलो करता है कि नाइट्राइल्स कैन बी कन्वर्टेड टू अमाइड बाय एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हम एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। सी दिस पार्ट, वी आर डूइंग एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस, सो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमाइड। और अमाइड को जब हम हीट करेंगे और एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट जो है वो हो जा रहा है। यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ दिस रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड एट अमाइड लेवल ऑल्सो। हम यहाँ पे भी रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। कैसे स्टॉप कर सकते हैं? अगर हमने माइल्ड रिएक्शन कंडीशन का यूज किया हुआ है। तो अगर हम माइल्ड रिएक्शन कंडीशन को यूज करें देन रिएक्शन विल स्टॉप एट अमाइड लेवल ओनली एंड यू विल नॉट गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या माइल्ड हो सकता है? हम माइल्ड हो सकता है कि पहले देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हमें यूज नहीं करना है, वी डोंट हैव टू हीट इट अप। सो दिस रिएक्शन इट वर्क्स ऑन बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे दोनों ही पे ये काम करेगा, एलिफेटिक नाइट्राइल और एलिफेटिक अमाइड पे भी काम करेगा और एरोमेटिक पे भी करेगा। सो सी द एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन दैट आई हैव टेकन। यहाँ पे है बेंजामाइड, इसको बोलते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजामाइड एंड यू कैन सी दैट अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग इट डायरेक्टली, यहाँ पे आपने हीट कर दिया तो ये बन गया बेंजोइक एसिड और अमोनिया विल बी फॉर्म्ड एज द बाई प्रोडक्ट। सिमिलरली वी हैव गॉट नाइट्राइल ओवर हियर, एल्काइल नाइट्राइल है। एल्काइल नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसको पहले अमाइड में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद भी हमने उसका हाइड्रोलिसिस कराया एट हायर टेम्परेचर। At higher temperature then we get the product as carboxylic acid and ammonia will be formed as the byproduct. So this is another method by which we will get carboxylic acids. This is another method by which we can prepare, the last one you can say, by which esters can be converted to carboxylic acid. So again there are two methods by which esters can be converted, either it is by acidic hydrolysis or by basic hydrolysis. So acidic hydrolysis will convert it directly to carboxylic acid, whereas basic hydrolysis will convert it to the carboxylate ion, as you have seen in case of amides. So look over here, in case of acid chloride also followed the same path. Similarly in case of, you can see this is an ester and in अपॉन H3O प्लस व्हेन वी राइट, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया तो डायरेक्टली यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया एंड द बाई प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग इज एन अल्कोहल. सो यू कैन सी ओवर हियर यू आर गेटिंग द बाई प्रोडक्ट एज एन अल्कोहल. सो बट इफ यू रिएक्ट इट विथ अ बेस फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे अगर हमने बेस के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये आपका सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और उसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो देन फाइनली यू गेट द रिएक्टेंट, यू गेट द प्रोडक्ट एज बेंजोइक एसिड. So these are the methods, 5 or 6 methods we have discussed today by which we can convert different reactants into carboxylic acids, and these are the preparations that you have to do. So in this case you can see that the byproduct that you are getting is an alcohol. So this part gets converted to an alcohol and the one which is attached to C double bond O. अब ये वाला देखिए एस्टर का वो पार्ट जो C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है डायरेक्टली वो पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में, और दूसरा वाला एल्काइल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल में. तो यही है, इसमें यही आपको ध्यान देना है कि कैसे जो है वो रिएक्शन होगा. अब ये डायरेक्टली कन्वर्टेड नहीं था एल्काइल ग्रुप, तो ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, और ये वाला पार्ट बेंजीन रिंग जो था वो डायरेक्टली जॉइंट था, डायरेक्टली बॉन्डेड था C डबल बॉन्ड O को, सो दैट वाज converted into a carboxylic acid. So this is what we had to do today. The preparations of carboxylic acid we have done.